करते रहेंगे। ஆண்டவர் மேல ஒரு தாகம் இருக்கணும். परमेश्वर के ऊपर वो प्यास होना चाहिए। ஆண்டவருடைய அன்பு மேல ஒரு தாகம் இருக்கணும். परमेश्वर के उस प्रेम के ऊपर हमें प्यासा होना है। ஆண்டவர் மேல வாஞ்சையா இருந்து அவரையே நம்முடைய ஆகாரமாக்கணும். परमेश्वर के ऊपर इच्छा करके जो है परमेश्वर ही मेरा जो है भोजन है करके समझना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் மேல வாஞ்சையா இல்லாததுக்கு காரணம் என்னன்னா, लेकिन आज की तारीख में क्यों हमें जो है परमेश्वर के ऊपर इच्छा नहीं, पता है क्या कारण है? உலக பிரகாரமான காரியங்கள். क्योंकि जो है संसारिक कार्यों के बारे में மத்தேயு सोचते हैं। 6ஆம் அதிகாரத்துல मत्ती போட்டிருக்கு, की किताब 6 अध्याय में लिखा गया है, 2 எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. 2 मालिक की आप सेवा नहीं कर யூ सकते। cannot serve two masters. 2 मालिक की आप सेवा नहीं कर सकते। ஒருவனை பகைத்து இன்னொன்னு பண்ணுவானா, இன்னொன்னு நேசிப்பேன். और एक से नफरत करके दूसरे से प्रेम नहीं करते। தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் உன்னால என்ன பண்ண முடியாதாம்? ஊழியம் செய்ய देखो முடியாதுன்னு போட்டிருக்கு. परमेश्वर को भी और संसारिक के बाद संसार के लिए भी आप सेवा नहीं कर सकते। நீங்க உலக பொருள்னால நிரம்பி இருந்தீங்கன்னா, ஆண்டவருடைய காரியத்தினால நிரம்பி இருக்க देखो अगर முடியாது. आप संसार के बातों से भरे रहेंगे तो परमेश्वर के कार्य में आप भरे नहीं हो सकते। நல்லா கேட்டுங்க. आप अच्छे से सुने। நீங்க உலக பொருள் எல்லாமே ஆண்டவர் என்ஜாய் பண்ண தான் देखो குடுத்திருக்காரு. परमेश्वर ने हर एक संसार की जो चीजें दी है वो आपको आनंद उठाने के लिए दी ஆனா है। எதுக்கும் நம்ம அடிமையாயிடக்கூடாது. लेकिन किसी बात में हम जो है गुलाम नहीं बनना है। எல்லாமே ஆண்டவர் என்ஜாய் பண்ண குடுத்திருக்காரு. हर एक बात परमेश्वर आनंद के लिए ही दिए है। சாப்பாடை என்ஜாய் பண்ண குடுத்திருக்காரு. खाना भी जो है परमेश्वर ने आनंद उठाने के लिए दिए है। சும்மா ஏதோ உடம்புக்கு ஸ்ட்ரெngthக்காக இல்ல. ऐसे ही परमेश्वर जो है शरीर की मजबूती के लिए नहीं। அதனால தான் நான் சொன்னேன். சாப்பாடுலாம் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடுறதுக்காக நாக்கு குடுத்திருக்காரு. देखो इसीलिए मैंने आपको बताया है खाना सब जो है अच्छा स्वादिष्ट मुंह में चटाकेदार जो है लेकर हमें खाना है। ஏதோ குளுக்கோஸ் சலைன் ஏத்திக்கிற மாதிரி சும்மா உள்ள உடம்புல ஏத்துறது இல்ல. ऐसी ग्लूकोज जो है सलाइन चढ़ाने की तरह हमें खाना जो है हमें अंदर नहीं डालना है। என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடணும். वो खाने का बड़ा ही आनंद उठा ஆனா खाना है। சாப்பாட்டுக்கு அடிமையாயிடக்கூடாது. लेकिन खाने जो है उसके ऊपर हमें गुलाम नहीं बनना है நிறைய சாப்பிடுறது. और बहुत खाना। சாப்பாடே வந்து ஒரு இமோஷனல் ப்ராப்ளத்தை காட்டுது. देखो खाना ही एक जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ समस्या को दर्शाता है। நிறைய சாப்பிடுறான் பாருங்களேன். देखो जो इंसान बहुत खाता है ना அவன் அன்புக்காக ஏங்குறான்ற அர்த்தம். उसका मतलब ये है कि वो प्रेम के लिए तरस रहा है। அன்புக்காக ஏங்குறான். वो प्रेम के लिए तरसता है। எப்படியாவது நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அந்த ஏக்கத்தை வந்து அவன் நிரப்பிக்க பாக்குறான். कैसे तो करके खा खा के जो जो तरस है उसको वो भरने की वो तृप्त करने की कोशिश में रहता है। அன்புக்காக ஏங்குற ஆட்கள், அன்பு கிடைக்காத ஆட்கள் பயங்கரமா சாப்பிடுவாங்க. और प्रेम की तरस के लिए रहता है जो प्रेम जिसको मिलता नहीं है वो जबरदस्त खाना खाता है। ஆனா சில நேரத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், ஏன் பண்றோம்ன்ற அவேர்னஸே நம்மளுக்கு கிடையாது. लेकिन हम क्यों कर रहे क्या कर रहे उस मानसिकता में हम नहीं रहते சோ हैं। சாப்பாடை என்ஜாய் பண்ண குடுத்திருக்காரு. इसलिए खाना जो है हमें आनंद उठाने के लिए दिया गया है நல்ல டேஸ்டா சாப்பிடணும். और अच्छा स्वादिष्ट खाना है ஹெல்தியா और சாப்பிடணும். सेहतमंद खाना है। நிறைய சாப்பிடக்கூடாது. ज्यादा नहीं खाना है। பைபிள்ல போட்டிருக்கு. बाइबल में लिखा ஒரு गया है இடத்துல போட்டிருக்கு. एक जगह में लिखा गया தேனை है சாப்பிடு அது உனக்கு நல்லதுன்ட்டு. अगर आप शहद नहीं खाओगे तो वो अच्छा होगा आपके लिए। தேனை சாப்பிடு அது நல்லது. और शहद को खाना वो अच्छा होता है தேனை சாப்பிடுறது நல்லது. और जो शहद होता है वो खा वो अच्छा होता है। ஆனா இன்னொரு இடத்துல போட்டிருக்கு. लेकिन एक दूसरी जगह में ये भी लिखा गया है அதிகமா தேன் சாப்பிட்டா நல்லது கிடையாது. लेकिन जो शहद है उसे अगर आप ज्यादा खाओगे तो सेहत के लिए हानिकारक भी है। நீதிமொழிகள் அப்படி போட்டிருக்கு. नीति वचन में लिखा गया है தேன் சாப்பிட்டா நல்லதுதான். शहद को खाना जो है अच्छा है क्या? நல்லதுதான். हाँ अच्छा है। அதுக்காக ஒரு 1/4 லிட்டர் 1/2 லிட்டர் குடிச்சிட முடியுமா? लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि पाव लीटर या आधा लीटर पी ले करके। ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் சாப்பிட்டா நல்லது. 2 स्पून 3 स्पून खाएंगे वो सेहतमंद होगा। ஆனா நீங்க ஒரு 1/4 லிட்டர் குடிச்சீங்கன்னா அது நல்லதா இருக்காது. लेकिन वो पाव लीटर अगर आप पी लोगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। சோ தேன் நல்லதா? நல்லதுதான். शहद अच्छा है हाँ अच्छा है நல்லது சாப்பிடணும். अच्छा से खाना चाहिए ஆனா அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। நான் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்ல அதிகமா சாப்பிடாதீங்க. देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको खाना ही नहीं चाहिए लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा नहीं खाना சோ चाहिए। எல்லாமே ஆண்டவர் என்ஜாய் பண்ண देखो கொடுத்திருக்காரு. हर एक बात परमेश्वर ने आनंद उठाने के लिए दिया है। God has given all things for us to enjoy. பைபிள்ல போட்டிருக்கு. बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर ने हमें जो भी चीज दिया है उसका आनंद उठाने के लिए उन्होंने दिया है। ஆனா எது மேலயும் உங்க இருதயத்தை பொருத்திடாதீங்க. लेकिन किसी भी बात में आपको आपके हृदय को मत लगाओ। ஏதாவது இருந்தாலும் இருக்க சந்தோஷமா இருக்க தெரியணும், இல்லனாலும் சந்தோஷமா இருக்க अगर தெரியும். कोई भी चीज है तो उसमें भी आपको खुशी होना चाहिए जो चीज अगर नहीं भी है उसमें भी आपको खुश रहना सीखना है। 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லயும் சாப்பிட தெரியணும், குடிசையிலயும் சாப்பிட தெரியணும். 5 स्टार होटल में भी खाने के लिए आपको आना चाहिए और अगर आप झोपड़ में झोपड़पट्टी में भी आपको खाने के लिए आना चाहिए। 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லயும் பெட்ல நல்லா படுத்து தூங்க தெரியணும். 5 स्टार में अच्छा बेड में सोने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए।
5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போயிட்டு இல்ல எனக்கு பெட்ல படுத்தா தூக்கம் வராது. கீழ பாய் போட்டு पடுத்துக்கிறேன்னு 5 சொல்லக்கூடாது. स्टार होटल में आप जाकर जो है हाँ, मुझे बिस्तर में नींद नहीं आता है, यानी कि गादी में मुझे नींद नहीं आता है, इसलिए जो आप नीचे जो है चटाई बिछा मेरे को वहीं पे मुझे नींद आता है, आपको ऐसा नहीं बोलना है। சில இடத்துல பாய் போட்டு தான் தூங்குற மாரி இருக்கும். देखो कोई-कोई जगह में आप चटाई बिछा के ही सो सकते हैं, वैसा जगह होता है। ஐயோ! நான் வந்து 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் தூங்குவேன். பெட் இல்லனா தூக்கம் வராது. देखो मैं 5 स्टार होटल में ही सोता हूँ और मुझे बेड के बिना नींद मुझे नहीं आती है। நல்ல கம்ஃபர்டபுளான இடத்துலயும் இருக்க தெரியும். கம்ஃபர்ட் இல்லாத இடத்துலயும் இருக்க தெரியும். देखो कंफर्टेबल जगह में रहने के लिए भी आपको आना चाहिए, अगर जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, आपको सुविधा महसूस नहीं होती, वो जगह में भी आपको सोने के लिए आना चाहिए। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम जो कह रहे हैं? பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता all है things are lawful for me, but I will not come under the power of any. देखो हर एक चीज़ मेरे लिए सही है, लेकिन मैं किसी के गुलाम नहीं हुआ करके लिखा है। எல்லாத்தையும் நான் செய்யலாம். எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க எனக்கு உரிமை உண்டு. देखो ஆனா எதுக்கும் அடிமையாக கூடாதுன்னு பவுல் देखो சொல்றார். मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं करने के लिए मैं उचित हूँ, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता, वहाँ पे कह रहे हैं। இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரியங்கள நம்ம நிரம்பி இருந்தோம்னா, अगर इस संसार के चीज़ों में अगर हम भरे रहेंगे ஆண்டவருடைய காரியத்துல நம்ம நிரம்ப तो हम மாட்டோம். परमेश्वर के बातों में नहीं भरेंगे। 2, 2, போட்டிருக்கு. 2 1 ஜான் சாப்டர் 2ல போட்டிருக்கு. रखो। சரி அந்த வசனத்தை எடுத்தே வாசித்துறோம். हम वो वचन को लेकर ही पढ़ेंगे। ரொம்ப முக்கியமான வசனம். देखो ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 1 ஜான் சாப்டர் 2 verse 15. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 नंबर का वचन। அதுல போட்டிருக்கு, उसमें लिखा गया है, do not love the world or things in the world. If anyone loves the world, and the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। For all that is in this world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविकी की का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। is not from the Father, but is from the world. संसार में उसकी अभिलाषा दोनों இல்ல இல்ல அது आगे verse बढ़ता नहीं, ஆமா. वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। And the world is passing away along with its desire, but who does the will of God abides forever. संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। Next ஒரு வாரம் இதையே வாசிங்க. और दूसरा ये जो आने वाला हफ्ता है ये पूरा जो है यही आप पढ़ते रहो। Do not love the world nor things of the world. तुम संसार से और संसार की वस्तुओं को प्रेम न करो। நல்லா கேட்டுங்க, இந்த உலகத்துல இருக்காதீங்க நான் சொல்ல. देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस संसार में न रहो, இந்த உலகத்துல ஒரு பொருளும் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये संसार में जो चीज है आप उस कोई भी चीजों को इस्तेमाल न करो இந்த करके। உலகத்தின் மேலயும் இந்த உலக பொருள் மேலயும் அன்பு கூறாதீங்கன்னு சொல்றேன். यहाँ पे ये लिखा है कि संसार में और संसार की वस्तुओं के ऊपर प्रेम न रखो। எவன் இந்த உலகத்தின் பொருள் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறானோ அவனிடத்துல பிதாவினுடைய அன்பு இல்லைன்னு பைபிள் और போடுது. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं है लिखा गया है। Do not love the world or the things of the world. तुम If ना anyone loves the world, the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே 3 கேட்டகரியில போட்டிருக்கு. देखो यहाँ पे जो संसार में जो कुछ चीजें हैं वो 3 कैटेगरी में लिखा गया है। The lust of the flesh, ये है अर्थात शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, ये जो है आंखों की अभिलाषा the pride of life. और जीविका की घमंड, இதெல்லாம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும். और ये सब एक दिन मिट जाएगा। பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனோ நிலைத்து நிற்பான். और परमेश्वर का जो भी इच्छा को पूरी करेगा वो ही रहेगा, सदा सर्वदा बना रहेगा। நம்ம பாக்குறது எல்லாத்தையும் ஆசைப்படுறது. जो कुछ देखे तो उनके उस बात पे इच्छा हो जाती ஒரு है, கண்ட்ரோலே கிடையாது. कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। லஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஷன். देखो ये अभिलाषा मतलब जो है एक बहुत जबरदस्त चाहत। கண்களின் நீச்ச பாக்குறதெல்லாம் ஆசைப்படுறது. जो कुछ आंखों में दिखता है उसके ऊपर जो है इच्छा करना। அப்படின்னா என்ன, நீ ஏற்கனவே இருக்கிறதுல திருப்தியா இல்லைன்ற அர்த்தம். इसका मतलब ये है कि जो कुछ तेरे पास अभी है उसमें आप तृप्त नहीं हुए करके। மாம்சீகமான காரியம் எல்லாத்தையும் விரும்புறது. और शारीरिक की जो भी चीजें सारी बातों के ऊपर उनको इच्छा। அந்த pride of
life. और ये है ये जीविका का घमंड ஜீவனத்தின் பெருமை. और जीविका का घमंड। சிலர்லாம் பொருள் தேவைன்னு வாங்க மாட்டாங்க, பெருமைக்காக வாங்குவாங்க. देखो कुछ लोग जो है चीजों को ये जरूरत है करके नहीं करते हैं, लेकिन जो है घमंड करने के लिए खरीदते हैं। சிலருக்குலாம் காரு எங்களுக்கு வேணும், கார் இருந்தா எங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு வாங்குறதை விட देखो कार मुझे चाहिए, कार मेरी जरूरत है, वो वैसे लेने के बजाय என்கிட்ட கார் இருக்குது 4 பேருக்கு காட்டணும். मेरे पास कार है, 4 लोगों को दिखाना है। எங்க சொந்தக்காரெல்லாம் நாங்க கார்ல வந்து இறங்குறத பார்க்கணும். और मेरे रिश्तेदार जो है हम कार से उतर रहे करके वो लोग देखना चाहिए। சிலருக்குலாம் வந்து நகை போட்டுன்னு இருக்கிறத விட நகை இருக்குதுன்னு 10 பேருக்கு காட்டணும். देखो कुछ लोगों को अच्छा मैं सोना पहना हूँ, वो सोच के बजाय जो है मैं सोना पहना हूँ ये 10 लोगों को दिखाना है, इसीलिए लोग पहनते हैं। கல்யாணத்துக்கு நகை இல்லைன்னா நிறைய லேடிஸ் கல்யாணத்துக்கே போக மாட்டாங்க देखो பாத்துங்க. शादियों में ऐसा होता है, बहुत सारे लेडीज लोग के पास अगर सोना नहीं है तो वो शादी में ही नहीं जाती है। நகை இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கே போக மாட்டாங்க. अगर सोना नहीं है तो वो शादी में ही नहीं जाती है, ஏன்னா எல்லாரும் நகை போட்டுன்னு வருவாங்களாம். क्योंकि सारे लोग सोना है ना पहन के आएंगे ना। நம்ம நகை போட்டுன்னு வரலாம்னு என்ன நினைப்பாங்க? तो अगर हम सोना नहीं पहनेंगे तो क्या सोचेंगे, அதனால கல்யாணத்துக்கு போக மாட்டாங்க. इसीलिए शादियों में नहीं जाएंगे। அப்ப கல்யாணத்துக்கு வந்து நகை காம்படிஷன் தான் நினைக்கிறேன். तो इसका मतलब ये है कि शादियों में ये जेवरात का जो है कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है। யாரு நிறைய நகை போட்டுனுக்குறோம்? कौन ज्यादा सोना पहना है। அது தேவை, சரி ஒரு அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது இல்ல. देखो हाँ ये जरूरत है, अगर थोड़ा पहनेंगे तो अच्छा दिखेगा, उस वजह से नहीं। யாரோ ஒரு பணக்கார ஓட பொண்ணோட போட்டோ போட்டிருந்தாங்க, கல்யாண போட்டோ போட்டிருந்தாங்க. कोई तो अमीर जादे की बेटी है, उसका शादी था, वो शादी की तस्वीर उन्होंने डाला அப்படியே था, ஃபுல்லா கோல்டு போட்டு. ऐसी पूरा सोना पहनकर। இதெல்லாம் எதுக்கு? ये क्यों तो ऐसे डालते फोटोज। கட்சியில பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்கிறத விட அது அசிங்கமா தான் இருக்கு. आखिरकार ऐसा हुआ, वो देखने से खूबसूरत दिखने के बजाय वो बहुत गंदा दिखने அது लगा। என்ன காட்டுதுன்னா பேராசை காட்டுது. तो ये क्या दर्शाता है, बहुत ज्यादा जो है लालची वैसा दिखाता है। அது என்ன காட்டுதுன்னு சொன்னா 4 பேருக்கு நாங்க யாருன்னு காட்டுறோம். तो ये क्या दर्शा रहा है पता है, देखो 4 लोगों को हमें ये दर्शाना है कि हम कौन है, हम कैसे, देखो करके। என் பொண்ணுக்கு எவ்வளவு நகை போட்டோம் பார்த்தியா, எவனும் அவ்வளவு நகை போட்டிருக்க देखा மாட்டான். मेरी बेटी को मैंने कितना सोना पहना है, देखा ऐसा कोई भी वैसा नहीं डालेंगे वैसा। நீ எவ்வளவு வேணா நகை போட்டும் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம். तो कितना भी सोना चांदी डाल के तो अपनी बेटी को शादी करके दे सकता है, உன் பொண்ணை நல்லா வளர்த்து இருந்தாதான் அந்த கல்யாணம் நிலைக்கும். लेकिन अगर तू अपनी बेटी को अच्छा से पालन पोषण किया रहेगा तभी वो शादीशुदा जीवन अच्छी तरह से चलेगा, இல்லன்னா அந்த பொண்ணு உன் வீட்டுக்கு வந்துரும். नहीं तो तेरी बेटी वो वापस घर पे लौट जाएगी। பொண்ணு எப்படி வளர்த்தன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம், எவ்வளவு நகை बेटी போட்டு को கொடுத்தன்றது முக்கியம் இல்ல. बेटी को कैसा पालन पोषण किया वही जरूरी है, ना कि सोना चांदी मैंने कितना दिया वो जरूरत नहीं है। பெருமைக்காக நம்ம பொருளை வாங்குறது. देखो घमंड करने के लिए चीजों को लेते हैं। எங்க வீட்லயும் டிவி இருக்குதுன்னு அந்த காலத்துல எல்லாரும் டிவி இருந்தா பெரிய விஷயம். எங்க வீட்லயும் டிவி இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக देखो வாங்குனாங்க. उन दिनों में जो है किसी घर में अगर टीवी रहता तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए क्या होता था, देखो हमारे पास भी टीवी है करके लोग खरीदते थे। ஜீவனத்தின் பெருமை. देखो जीविका का घमंड, இந்த உலகமும் அதுலதான் ஓடிட்டு இருக்கு. ये पूरा जो संसार है उसी में चल रहा இந்த है। உலகத்துல வந்து லஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிளஷ், और ये जो संसार में जो है शरीर का अभिलाषा, லஸ்ட் ஆஃப் த ஹைஸ், आंखों की अभिलाषा, பிரைட் ஆஃப் லைஃப், जीविका का இந்த घमंड, மூணுத்துல தான் போயிட்டு और இருக்கு. ये 3 बातों में ही चल रहा है। இதெல்லாம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. परमेश्वर लेकिन ये कह रहे हैं कि एक दिन ये सब मिट जाएगा, ஆனா ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்யறவன் எவனோ நிலைச்சிருப்பானா. लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा करके लिखा है। ஆண்டவர் சார் இதெல்லாம் வேஸ்ட், परमेश्वर कह रहे हैं ये सब व्यर्थ है, இதெல்லாம் வீணான ஒரு காரியம், ஒரு நாள் உண்மை இல்லாத போயிடும். ये सारी जो चीजें है ये सब बेकार है, ये एक दिन मिट जाएगा। ஆனா பாருங்க, लेकिन देखो तो நம்மளுக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னு வாங்குறதை விட பந்தாக்காக வாங்கினா ரொம்ப தப்பு. देखो एक चीज हमें जरूरत है उसको लेने के बजाय हमको दिखाना है, अगर इसके लिए अगर आप खरीदते हो तो वो गलत है। சின்ன वयசுல யோசிப்பேன், देखो बचपन में मैं सोचता था, அது பொதுவா நிறைய வாலிப பசங்களுக்கு அப்படிதான் இருந்திருக்கும். लेकिन ज्यादातर जो है नवयुग लड़कों को और बच्चों को ही शायद रहता होगा ये सब। பைக் வாங்கி बाइक लेकर நல்ல பைக் வாங்கி வேகமா ஓட்டணும், எல்லாரும் हाँ, பார்க்கணும், बाइक लेकर जो है बहुत जबरदस्त तेजी से चलाना है और सब लोग देखना है, எல்லாரும் பார்க்கணுன்றதுக்காக ஜனங்க முன்னாடி और ஓட்டணும். सभी लोग देखना है, इसीलिए लोगों के सामने वो लोग जाते हैं எனக்கு पास। பைக் வேணும், அது எனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்ன்றது இல்ல, என்கிட்ட பைக் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் காட்டணும். देखो ये मुझे बाइक की जरूरत है और ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, उसके बजाय जो है मुझे बाइक लेना है और लोगों को दिखाना है करके लेना गलत है।
அப்போ பைக் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு. பைக் வாங்க முடியல. देखो उन दिनों में मुझे बाइक लेने की बड़ी ही इच्छा थी, लेकिन उस समय बाइक नहीं ले पाया। இப்போ பைக் நெனச்சா ஈஸியா வாங்கிடலாம். ஆனா விருப்பம் இல்ல. लेकिन अभी बाइक अगर लेना है, अगर मैं सोचूँगा तो आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे लेने की इच्छा नहीं है। அத விட முக்கியமான காரியங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு இருக்கு என் லைஃப்ல. क्योंकि मेरे जीवन में उससे भी महत्वपूर्ण बातों को करने के लिए मैं बैठा हूँ अभी। இன்னைக்கு பைக் வாங்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. देखो आज की तारीख में बाइक लेना कुछ बड़ी बात नहीं है। பெருமை. घमंड। நம்ம இந்த உலக காரியத்துல நம்ம அன்பு கூர்ந்தோம்னா அப்படிதான் இருப்போம். देखो इन संसारिक बातों में हमारा प्रेम रहेगा, उसमें लगा रहेगा तो वो गलत है। வீண் பெருமை ஒரு நாளும் நம்மளுக்கு உதவாது. देखो जो फालतू जो घमंड है वो हमारे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं இந்த होगा। உலகத்தின் மேலயும், இந்த உலகத்து பொருள் மேல அன்பு கூர்றவங்களுக்குள்ள பிதாவினுடைய அன்பு இல்லன்னு பைபிள் देखो சொல்லுது. इन संसार के ऊपर और संसार की वस्तुओं के ऊपर प्रेम अगर रहेगा तो वो जो है पिता के ऊपर प्रेम नहीं रहेगा, लिखा गया है। நீங்க யோசித்துங்க எதுல உங்கள ஃபீட் பண்ணிக்கிறீங்க? तो आपको सोचना है आप अपने आप को किससे किस बातों से खिला रहे हो। உலக பொருளை யூஸ் பண்ணுங்க. देखो संसार की चीजों को इस्तेमाल करो, ஆனா அத அன்பு கூறாதீங்க. लेकिन उसके ऊपर आपका जो प्रेम है उसमें मत அது लगा உங்க करके रखो। மாஸ்டர் இல்ல. நீங்க தான் மாஸ்டர். देखो वो आपका मालिक नहीं है, बल्कि आप मालिक हो। பொருளுக்காக நீங்க இல்ல. உங்களுக்காக தான் பொருள் இருக்கு. चीजों के लिए आप नहीं हो, आपके लिए वो चीजें हैं। ஜனங்கள அன்பு கூர்றதுக்கு பதிலா பொருள அன்பு கூறுவோம். देखो लोगों से प्रेम करने के बजाय चीजों के ऊपर प्रेम रखते हैं। பொருள பயன்படுத்தணும். देखो चीजों को इस्तेमाल करना ஜனங்கள चाहिए, அன்பு கூறணும். पर लोगों के ऊपर प्रेम करना है। ஆனா நம்ம பொருள अன்பு கூறுவோம். ஜனங்கள பயன்படுத்துவோம். लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों के ऊपर प्रेम करते हैं और लोगों से ऊपर प्रेम नहीं करते हैं। பயன்படுத்துவோம். लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं। இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ நம்ம இருதயத்தை சரிப்படுத்திக்கோ. हमारे हृदय को हमें ठीक करना है। ஆண்டவரே உங்க விருப்பமா மாறட்டும். क्या आपका जो हृदय है पूरा परमेश्वर ही मेरी इच्छाएं करके எந்த बनाना। பொருளும் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தியை தர முடியாது. देखो कोई भी चीजें आपको तृप्त नहीं कर सकता, ஆண்டவர் தான் உங்களுக்கு திருப்தியை தர முடியும். परमेश्वर खुद ही आपको तृप्त कर In सकते his हैं। presence there is fullness of joy. उनकी उपस्थिति में भरपूरी का At आनंद है his right hand there are pleasures और उनके forevermore. दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है பேரானந்தம் உண்டாம். और जो है सुख सर्वदा बना रहता है। எப்போ பேரின்பம் பேரானந்தம் உண்டாம். मतलब ये जिंदगी भर हमेशा जो है सुख बना रहता है। அவருக்குள்ள நாம் களி கூறணும். हम उनके आनंद उठाना है। கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாயிரு. அவரே உன் இருதயத்தின் விருப்பங்களை அருள செய்வார். परमेश्वर के ऊपर आनंद उठा और वही तेरी इच्छाएं है। உலக பொருள் மேல இருக்க அன்புல இருந்து ஒரு விடுதலை ஆகணும். और जो संसार की चीजों के ऊपर से आपको छुटकारा पाना है। எல்லா பொருளும் வச்சீங்க. देखो सारी என்ன என்னென்னலாம் வச்சுக்க முடியுமோ வச்சீங்க. जितना हो सके उतना जो आप रख सकते हो वैसा आप रख लो, ஆனா அந்த பொருள் மேல உங்களுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. लेकिन उन चीजों के ऊपर आपका मन नहीं लगना चाहिए। இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒரு பொருளை இன்னொருத்தருக்கு குடுத்துட்டு போய் आज अगर कहेगी उठा और इसको दे दे तो उठा के दे के चले जाना ஒரு चाहिए। சில டைம்ல ஒரு பொருள் எல்லாம் குடுக்கும்போது சிலர் சொல்லுவாங்க, देखो कभी कभी जो चीज अगर हम कुछ देंगे तो एक कोई दूसरे என்ன பண்ணுவீங்க? तो दूसरे ये कहेंगे अगर तुम सब चीज उठा उठा के दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा। இந்த பொருள் எல்லாம் வச்சு நான் பிறந்தோம் नाங்க. क्या ये सारी चीजों को रख के क्या हम जन्म ஒரு लिए। காலத்துல இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு. एक समय था ये सब हमारे पास, இப்ப வந்துச்சு. अब आ गया, இப்ப குடுப்போம். अब देंगे, திருப்பியும் வரும். वापस और आएगा। கர்த்தர் எதையா குடுக்க சொன்னா குடுக்கணும். परमेश्वर अगर कहता है देने के लिए हमें देना है। பொருள் மேல நம்மளுக்கு ஒரு அன்பு ஆயிடக்கூடாது. அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடக்கூடாது. चीजों के ऊपर वो प्रेम नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा लगाव नहीं। யூஸ் பண்ணிக்கோ. जितना है तब तक यूज करेंगे। பொருள் இருந்தாலும் சரி இல்லனாலும் சரி. चीजें हमारे पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो சந்தோஷங்களான்னு ரொம்ப முக்கியம். खुशी से आप है क्या नहीं वो महत्वपूर्ण है। ஒண்ணுமே இல்லனாலும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? कुछ भी नहीं तो खुश हो क्या नहीं, அதான் ரொம்ப முக்கியம். वही जरूरी है। பாருங்க 2 காரியம் இல்லன்னா உங்க லைஃப்ல நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். देखो ये दो चीज अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप बड़े ही खुशी से रह सकते இந்த हो। 2 காரியத்தின் மத்தியில கூட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம். ये दो चीज रहेगा तो भी आप खुशी से रह सकते हो, ஆனா இது ரொம்ப முக்கியம். लेकिन ये दो बात है बहुत महत्वपूर्ण। நிலையில இல்ல, आप कोई कर्ज के दबाव में नहीं हो, வியாதி இல்ல. बीमार नहीं, இது 2 இல்லன்னா போதும். आपके पास अगर ये दो चीज नहीं है तो நீங்க बस நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். आप बहुत खुशी से रह நீங்க सकते हो। என்ன சின்ன வீட்ல இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கலாம். आप कितने भी छोटे से घर में रहेंगे तो भी आप खुशी से रह நீ सकते சின்ன हो। வீட்ல இருக்கிறியா, அம்பானி மாதிரி பெரிய வீட்ல இருக்கியான்றது முக்கியம் இல்ல. आप छोटे घर में हो या अंबानी की तरह बहुत बड़े आलीशान घर में हो ये जरूरी नहीं।
சந்தோஷமா இருக்கா இல்லையான்றது ரொம்ப முக்கியம். तो खुशी से है या नहीं है वो ज्यादा जरूरी है। நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும், சமாதானமா இருக்கணும். अच्छे खुशी से रहना है, शांति पूर्वक रहना है, இருக்கிற காரியத்துல மன நிறைவோட और இருக்கணும். जो चीज है उसमें बड़ा ही तसल्ली मानना चाहिए। சரி, இதோட இந்த வாரத்துக்கு முடிச்சுக்குவோம். तो यहाँ से इस हफ्ते के लिए हम समाप्त करेंगे, மீதி அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். और बाकी का जो ये जो सेशन है हम अगले हफ्ते देखेंगे।